بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اصحاب کہف کون تھے، کتنے تھے، غار میں کیوں چھپے تھے، ان کے ساتھ کون سا جانور تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عرصہ سلائے رکھا، یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے اور اس حوالے سے مکمل سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ کہف بھی اسی غار کی نسبت سے ہے جس میں یہ اصحاب چھپے تھے اور اللہ نے ان کو اسی غار میں سلائے رکھا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اصحاب کہف کا مکمل واقعہ بتائیں گے اور سورہ کہف کا مکمل ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی آپ کو بتائیں گے، جس میں اس واقعے کے علاوہ بھی کچھ واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ واقعات بھی ویڈیو کا حصہ ہوں گے۔ ان واقعات میں بادشاہ ذوالقرنین کا واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بھی شامل ہے۔ ویڈیو دلچسپ ہونے کے ساتھ ایمان افروز بھی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ دوستو، حافظ ابن جریر طبری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورت کہف کا شان نزول یوں نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوائے نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیجیے، اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرے اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تیسرے ان سے پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ پہلے 2 سوالات کے جواب میں یہ سورت یعنی سورہ کہف نازل ہوئی، جس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ انہی کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہوئے غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں سورت کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے جنہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسی سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصہ ان کی معیت میں سفر کیا تھا۔ یہ 3 واقعات اس سورت کا مرکزی موضوع ہیں۔ اس سورت کی تفسیر میں یہ واقعات بھی آگے چل کر بیان ہوں گے، لیکن پہلے آپ کو اصحاب کہف کا مکمل واقعہ سناتے ہیں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، وہ تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہیں غار ان کی قبر بن جائے۔ لیکن دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدس کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکری کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف دین عیسوی کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملخا یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ الہی، یہ ماجرا کیا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا۔
बल्कि कोई उस सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शुबह हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनाचे दुकानदार ने उसको हुकाम के स्पुर्द कर दिया और हुकाम ने उनसे खजाने के बारे में पूछगछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है। यमलिखा ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुकाम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि रुपया तुम्हारा है? ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए कि इस सिक्के का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि मसला हल हो जाए। ये सुनकर यमलिखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दक्यानूस बादशाह का क्या हाल है। हुकाम ने कहा कि आज रुए ज़मीन पर उस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजरे कि इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। यमलिखा ने कहा कि अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब ही के एक गार में मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला दूं। चुनाचे हुकाम और अमायदीन शहर कसीर तादाद में उस गार के पास पहुंचे। असहाबे कहफ यमलिखा के इंतजार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने यह ख्याल कर लिया कि शायद यमलिखा गिरफ्तार हो गए, और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर होगा उन लोगों ने सुना तो समझ बैठे कि गालबन दक्यानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा व इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गए। हुकाम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और उसके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ा तो उस तख्ती पर असहाबे कहफ का नाम लिखा था और ये भी तहरीर था कि ये मोमिनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दक्यानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुज़ीन हुई है। तो दक्यानूस ने खबर पाकर एक दीवार से इन लोगों को गार में बंद कर दिया है। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब भी ये गार खुले तो लोग असहाबे कहफ के हाल पर मुत्तला हो जाएं। हुकाम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और उन लोगों ने अपने बादशाह बैदरूस को इस वाक़े की इत्तला दी। फौरन ही बैदरूस बादशाह अपने उमरा और उमायदीन शहर को साथ लेकर गार के पास पहुंचा तो असहाबे कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मानका किया और अपनी सरगुज़श्त बयान की। बैदरूस बादशाह सजदे में गिरकर खुदावंदे कुरस का शुक्रिया अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो जाए। रिवायात में आता है कि असहाबे कहफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए, अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। फिर असहाबे कहफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए और इसी हालत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को वफात दे दी। बादशाह बैदरूस ने साल की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाबे कहफ की मुकद्दस लाशों को उसमें रखवा दिया और अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का ऐसा रोब लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की ये मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह असहाबे कहफ की लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। फिर बैदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले इस दिन ईद की तरह ज़ियारत के लिए आया करें। याद रहे कि यह वाक़या तफसीर खाज़िन की जिल्द नंबर 3 से आपकी खिदमत में पेश किया गया है। दोस्तों, आपने असहाबे कहफ का ये अजीब और दिलचस्प वाक़या मुलाहिज़ा किया। जहाँ तक बात है असहाबे कहफ की तादाद की, तो रिवायात में आता है कि तादाद में जब लोगों का इख्तलाफ हुआ तो ये आयत अल्लाह ताला ने सूरह कहफ की आयत नंबर 22 नाजिल फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, मेरा रब उनकी गिनती खूब जानता है, उन्हें नहीं जानते मगर थोड़े। और रिवायात में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं उन्हीं कम लोगों में से हूँ जो असहाबे कहफ की तादाद को जानते हैं। फिर आपने फरमाया कि असहाबे कहफ की तादाद 7 है और 8वां उनका कुत्ता है। रही बात के असहाबे कहफ के नामों की, तो याद रहे कि उनके नामों में भी बहुत इख्तलाफ है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उनके नाम ये हैं यमलिखा, मक्षलीना, मेशलीना, मरनूश, दबरनूश, शाजनूश और 7वां चरवाहा था जो उन लोगों के साथ हो गया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका जिक्र नहीं फरमाया और उन लोगों के कुत्ते का नाम कतमीर था और उन लोगों के शहर का नाम अफसोस था और जालिम बादशाह का नाम दक्यानूस था। तफसीर सावी में लिखा है कि असहाबे कहफ के नाम ये हैं मिक्समिलीनिया, यमलिखा, तूनस, नैनूनस, सारियूनस, जिन्नवास, फिलतियूनस। ये आखिरी चरवाहे थे जो रास्ते में साथ हो लिए थे और उन लोगों के कुत्ते का नाम कितमीर था। प्यारे दोस्तों, आपने असहाबे कहफ का वाक़या मुलाहिज़ा फरमाया जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में एक अजीब ईमान अफरोज़ निशानी है। चलिए अब आपको इस सूरत का तर्जमा और इसकी तफसीर बताते हैं। इस सूरत की इब्तदाई आयात में अल्लाह ताला फरमाता है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें किसी किस्म की कोई ख़ास खामी नहीं रखी। एक सीधी सीधी किताब जो उसने इसलिए नाजिल की है कि लोगों को अपनी तरफ से एक सख्त अजाब से आगाह करे और जो मोमिन नेक अमल करते हैं उनको खुशखबरी दे कि उनको बेहतरीन अजर मिलने वाला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और ताकि उन लोगों को मुतनब्बे करे जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा बना रखा है। इस बात का कोई इल्मी सबूत न खुद उनके पास है न उनके बाप दादाओं के पास था। बड़ी संगीन बात है जो उनके मुंह से निकल रही है। जो कुछ वो कह रहे हैं वो झूठ के सिवा कुछ नहीं। अब ऐ पैगंबर, अगर लोग कुरान की इस बात पर ईमान ना लाएं तो ऐसा लगता है जैसे तुम अफसोस कर करके उनके पीछे अपनी जान को घुला बैठोगे। यकीन जानो कि रुए ज़मीन पर जितनी चीज़ें हैं हमने उन्हें ज़मीन की सजावट का जरिया इसलिए बनाया है ताकि लोगों को आजमाएं कि उनमें कौन ज़्यादा अच्छा अमल करता है।
مذکورہ آیات کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے کفر اور مخالف طرز عمل سے سخت صدمہ ہوتا تھا۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دی گئی ہے کہ یہ دنیا تو لوگوں کے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون ہے جو دنیا کی سجاوٹ میں محو ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور کون ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال کر کے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بناتا ہے۔ اور جب یہ امتحان گاہ ہے تو اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو امتحان میں کامیاب ہوں گے اور وہ بھی جو ناکام ہوں گے۔ لہٰذا اگر یہ لوگ کفر و شرک کا ارتکاب کر کے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں تو اس میں نہ کوئی تعجب کی بات ہے اور نہ اس پر آپ کو اتنا افسوس کرنا چاہیے کہ آپ اپنی جان کو گھلا بیٹھیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے، یعنی جتنی چیزوں سے یہ زمین سجی ہوئی اور بارونق نظر آتی ہے ایک دن وہ سب فنا ہو جائیں گی، نہ کوئی عمارت باقی رہے گی، نہ پہاڑ اور درخت، بلکہ وہ چٹیل اور سپاٹ میدان میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس وقت یہ حقیقت واضح ہوگی کہ دنیا کی ظاہری خوبصورتی بڑی ناپائیدار تھی، اور یہی وہ وقت ہوگا جب آپ کے ساتھ ضد اور دشمنی کا معاملہ کرنے والے اپنے برے انجام کو پہنچیں گے۔ لہٰذا اگر ان لوگوں کو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں بدعملی کے باوجود آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، لہٰذا نہ آپ کو زیادہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ان کے انجام پر فکر مند ہونے کی۔ آپ کا کام تبلیغ ہے، بس اسی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ ان حضرات کے واقعے کا خلاصہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ یہ کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرک بادشاہ کے عہد حکومت میں توحید کے قائل تھے۔ بادشاہ نے ان کو توحید پر ایمان رکھنے کی بنا پر پریشان کیا تو یہ حضرات شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری فرما دی اور یہ 309 سال تک اسی غار میں پڑے سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیند کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا اور ان کے جسم بھی گلنے سڑنے سے محفوظ رہے۔ 309 سال بعد ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی مدت تک سوتے رہے۔ لہٰذا ان کو بھوک محسوس ہوئی تو اپنے میں سے ایک صاحب کو کچھ کھانا خرید کر لانے کے لیے شہر بھیجا۔ مکمل واقعہ اس حوالے سے دوستوں ہم آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا چکے ہیں۔ البتہ آپ کو بتاتے چلیں کہ عیسائیوں کے یہاں یہ واقعہ 7 سونے والے یعنی 7 سلیپرز کے نام سے مشہور ہے۔ معروف مورخ ایڈورڈ گبن نے یہ واقعہ اپنی مشہور کتاب زوال و سقوط سلطنت روم میں بیان کیا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ ڈوسیسس تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں پر ظلم ڈھانے میں بہت مشہور ہے، اور یہ واقعہ ترکی کے شہر افسس میں پیش آیا تھا جس بادشاہ کے زمانے میں یہ حضرت بیدار ہوئے۔ گبن کے بیان کے مطابق وہ تھیوڈوسس تھا۔ مسلمان مورخین اور مفسرین نے بھی اس سے ملتی جلتی تفصیلات بیان فرمائی ہیں اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس ذکر کیا ہے۔ ہمارے دور کے بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اردن کے شہر عمان کے قریب پیش آیا تھا، جہاں ایک غار میں کچھ لاشیں اب تک موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بات بھی اتنی مستند نہیں ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ کسی واقعے کی اتنی ہی تفصیل بیان فرماتا ہے جو فائدہ مند ہو، اس سے زیادہ تفصیلات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ و تفسیر میں جو واقعہ سند کے ساتھ بیان ہوا ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ پیارے دوستو، مذکورہ آیت میں ان اصحاب کو رقیم والے کہا گیا ہے، تو دوستو ان حضرات کو اصحاب کہف یعنی غار والے کہنے کی وجہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، لیکن ان کو رقیم والے کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ رقیم اس غار کے نیچے والی وادی کا نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ رقیم تختی پر لکھے ہوئے کتبے کو کہتے ہیں، اور ان حضرات کے انتقال کے بعد ان کے نام ایک تختی پر کتبے کی صورت میں لکھوا دیے گئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ اس پہاڑ کا نام ہے جس پر وہ غار واقع تھا، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اس آیت میں انہی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت کے پیش نظر یہ واقعہ کوئی بہت عجیب نہیں ہے، کیونکہ اس کی قدرت کے کرشمے تو بے شمار ہیں۔ اگلی آیات کا ترجمہ یوں ہے، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ یاد رہے کہ کانوں پر تھپکی دینا عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند طاری کر دی۔ وجہ یہ ہے کہ نیند کے شروع میں کان آوازیں سنتے رہتے ہیں اور ان کا سننا اسی وقت بند ہوتا ہے جب وہ گہری نیند ہو گئی ہو۔ اگلی آیات میں ارشاد ہے، پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے 2 گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے۔ ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کریں گے۔
प्यारे दोस्तों, इब्ने कसीर की एक रिवायत से मालूम होता है कि जब बादशाह को उनके अकीदे का पता लगा तो उसने उन्हें अपने दरबार में तलब कर लिया और उनसे उनके अकीदे के बारे में पूछा। तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से तौहीद का अकीदा बयान किया, जिसका आगे जिक्र आ रहा है, और दिल की इस मजबूती का हवाला इस आयत में दिया गया है। अगली आयत में इरशाद फरमाया, ये हमारी कौम के लोग हैं जिन्होंने उस परवरदिगार को छोड़कर दूसरे माबूद बना रखे हैं। अगर उनका अकीदा सही है तो वो अपने माबूदों के सबूत में कोई वाज़ेह दलील क्यों पेश नहीं करते। भला उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। और साथियों, जब तुमने उन लोगों से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है और उनसे भी जिनकी ये अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, तो चलो अब तुम इस गार में पनाह ले लो। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपना दामन रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में आसानी के असबाब मुहैया फरमाएगा। यानी दोस्तों, इन आयात में इस तरफ इशारा है कि जब तुमने दीन हक इख्तियार कर लिया है और तुम्हारे शहर के लोग तुम्हारे मुखालिफ हो गए हैं, तो अब इस दीन के मुताबिक इबादत करने की यही सूरत है कि शहर से बाहर पहाड़ पर जो गार है उसमें जा बैठो कि किसी को तुम्हारा पता ना चले। अगली आयत में इरशाद है, और वो गार ऐसा था कि तुम सूरज को निकलते वक्त देखते तो वो उनके गार से दाएं तरफ हटकर निकल जाता, और जब गरूब होता तो उनसे बाएं तरफ कतरा कर चला जाता, और वो उस गार के एक कुशादा हिस्से में सोए हुए थे। ये सब कुछ अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जिसे अल्लाह हिदायत दे दे वही हिदायत पाता है, और जिसे वो गुमराह कर दे उसका तुम्हें हरगिज़ कोई मददगार नहीं मिल सकता जो उसे रास्ते पर लाए। दोस्तों, इन आयात में बयान हुआ है कि इस गार का महल्ले वकू कुछ ऐसा था कि उसमें धूप नहीं आती थी। तुलुए आफ्ताब के वक्त सूरज उसके दाएं जानिब हटकर निकल जाता था और गुरूब के वक्त बाएं जानिब, और इस तरह ये लोग धूप की तपिश से महफूज भी रहे और उससे उनके जिस्म और कपड़े भी खराब नहीं हुए, और धूप के करीब से गुजरने की वजह से गर्मी के फवाइद भी हासिल होते रहे। और अल्लाह ताला ने इन आयात में फरमाया कि उन लोगों का इस गार में पनाह लेने, इतना लंबा अरसे तक सोते रहने और धूप से महफूज रहना, ये सब कुछ अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत की निशानी है। अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम इन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए थे, और हम उनको दाएं और बाएं करवट दिलवाते रहते थे, और उनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए बैठा था। अगर तुम उन्हें झांक कर देखते तो उनसे पीठ फेर कर भाग खड़े होते और तुम्हारे अंदर उनकी दहशत समा जाती। यानी सोने वाले पर नींद की जो अलामतें देखने वाले को नजर आती हैं वो उनमें नजर नहीं आती थी, और ऐसा मालूम होता था जैसे वो लेटे हुए जाग रहे हैं। अगली आयत में इरशाद है, और जैसे हमने उन्हें सुलाया था इसी तरह हमने उन्हें उठा दिया ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछ गुछ करें। इनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम इस हालत में कितनी देर रहे होगे? कुछ लोगों ने कहा, हम एक दिन या एक दिन से कुछ कम नींद में रहे होंगे। दूसरे ने कहा, तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर इस हालत में रहे। अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर की तरफ भेजो, वो जाकर देखभाल करे कि इसके कौन से इलाके में ज्यादा पाकीज़ा खाना मिल सकता है, फिर तुम्हारे पास वहां से कुछ खाने को ले आए, और उसे चाहिए कि होशियारी से काम करे और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे। प्यारे दोस्तों, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पाकीज़ा खाने से मुराद बज़ाहिर हलाल खाना है। उन हजरात को ये फिक्र थी कि बुत परस्तों के शहर में हलाल खाना मिलना आसान नहीं, इसलिए जाने वाले को ये ताकीद की कि वो ऐसी जगह से खाना लाए जहां हलाल खाना मुयसर हो। नहीं, चूंकि उनके ख्याल में अभी तक उसी बुत परस्त बादशाह की हुकूमत थी, इसलिए उन्हें दूसरी फिक्र ये थी कि कहीं किसी को उनके गार में छुपने का पता ना लग जाए। इसलिए जाने वाले को दूसरी ताकीद ये की कि होशियारी से जाकर खाना लाए। अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर उन शहर के लोगों को तुम्हारी खबर मिल गई तो ये तुम्हें पथराव करके हलाक कर डालेंगे या तुम्हें अपने दीन में वापस आने के लिए मजबूर करेंगे, और ऐसा हुआ तो तुम्हें कभी फलाह नहीं मिल सकेगी। और यूं हमने उनकी खबर लोगों तक पहुंचा दी ताकि वो यकीन से जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है। नीज ये कि क़यामत की घड़ी आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। फिर वो वक्त भी आया जब लोग उनके बारे में आपस में झगड़ रहे थे। चुनाचे कुछ लोगों ने कहा कि इन पर एक अमारत बना दो, उनका रब ही उनके मामले को बेहतर जानता है। आखिरकार जिन लोगों को उनके मामलात पर गलबा हासिल था उन्होंने कहा कि हम तो उनके ऊपर एक मस्जिद जरूर बनाएंगे। इन आयात की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जब वो साहिब जिनका नाम बाज़ रिवायतों में यमलखा बताया गया है खाना लेने के लिए शहर पहुंचे और दुकानदार को वो सिक्का पेश किया जो 300 साल पुराना था और उस पर पुराने बादशाह की अलामतें थीं, वो दुकानदार बड़ा हैरान हुआ और उनको लेकर उस वक्त के बादशाह के पास पहुंचा। ये बादशाह नेक था और उसने ये किस्सा सुन रखा था कि कुछ नौजवान दक्यानूस के जुल्म से तंग आकर कहीं गायब हो गए हैं। उसने मामले की मजीद तहकीक की तो पता चल गया कि ये वही नौजवान हैं। उस पर बादशाह ने उनको ख्वाब इकराम किया, लेकिन ये हजरात दोबारा उसी गार में चले गए और वहीं पर अल्लाह ताला ने उन्हें वफात दे दी। याद रहे कि इन असहाबे काफ का इतनी लंबी मुद्दत तक सोते रहना और फिर जिंदा जाग उठना अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की वाज़िह दलील थी, और इस वाक़े को देखकर हर शख्स बाआसानी इस नतीजे तक पहुंच सकता है कि जो ज़ात इतने अरसे तक सोने के बाद उन नौजवानों को जिंदा उठा सकती है, यकीनन वो इस बात पर भी कादिर है कि तमाम इंसानों को मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दे। बाज़ रिवायात में है कि उस वक्त का बादशाह तो क़यामत और आखिरत पर ईमान रखता था, लेकिन कुछ लोग आखिरत के बारे में शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे थे।
और बादशाह ने ये दुआ की थी कि अल्लाह ताला उनको कोई ऐसा वाक़या दिखा दे जिससे आखिरत पर उनका ईमान मजबूत हो जाए। अल्लाह ताला ने उसी वक्त उन नौजवानों को जगाकर अपनी कुदरत का ये करिश्मा दिखा दिया। जैसा कि पहले अर्ज किया, ये हजरात जागने के बाद जल्द ही उसी गार में वफात पा गए। अब अल्लाह ताला की कुदरत का ये करिश्मा सामने आया कि जिन नौजवानों को कभी उस शहर में अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, अब उसी शहर में उनकी ऐसी इज्जत हुई कि लोग उनकी यादगार में कोई इमारत बनाने की फिक्र में पड़ गए। और आखिरकार जिन लोगों को इक़्तिदार हासिल था, उन्होंने ये तय किया कि जिस गार में उनकी वफात हुई है उस पर एक मस्जिद बना दे। वाज़ेह रहे कि ओमान के पास जो गार दरियाफ्त हुआ है उसमें खुदाई करने से गार के ऊपर बनी हुई एक मस्जिद भी बरामद हुई है। यहाँ ये भी वाज़ेह रहना चाहिए कि उनकी वफात की जगह पर मस्जिद बनाने की ये तजवीज़ उस ज़माने के असहाब इक़्तिदार ने दी थी। कुरान मजीद ने इस तजवीज़ की तायद नहीं फरमाई, लिहाजा इस आयत से मकबरे बनाने या कब्रों को इबादत गाह बनाने में तब्दील करने का कोई जवाज़ नहीं निकलता, बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस में इस अमल से मना फरमाया है। दोस्तों, रिवायात से ऐसा मालूम होता है कि जब इन हजरात की यादगार तामीर करने की तजवीज़ आई तो लोगों ने यह भी सोचा कि इनके सही नाम और उनका नसब और मजहब वगैरह भी इस यादगार पर लिखा जाए। लेकिन चूंकि किसी को उनके पूरे हालात मालूम नहीं थे, इसलिए फिर लोगों ने कहा कि इनके ठीक हालात तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लेकिन हम उनके नसब वगैरह की तहकीक में पड़े बगैर ही उनकी यादगार बनाए देते हैं। अगली आयत का तर्जमा है, कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 आदमी थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ कहेंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब अटकल के तीर चलाने की बातें हैं। और कुछ कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा रब ही उनकी सही तादाद को जानता है, थोड़े से लोगों के सिवा किसी को उनका पूरा इल्म नहीं, लिहाजा उनके बारे में सरसरी गुफ्तगू से आगे बढ़कर कोई बहस ना करो और ना उनके बारे में किसी से पूछ गुछ करो। प्यारे दोस्तों, इस आयत ने यह मुस्तकिल सबक दे दिया है कि जिस मामले पर इंसान का कोई अमली मसला मौकूफ ना हो, उसके बारे में खामख्वाह बहसें नहीं होनी चाहिए। असहाबे काफ के वाक़े में असल सबक लेने की बात यह है कि उन्होंने किस तरह नामवाफिक हालात में हक पर साबित कदम रहने का मुजाहिरा किया और फिर अल्लाह ताला ने किस तरह उनकी मदद फरमाई। रहा यह सवाल कि उनकी सही तादाद क्या थी, ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पर बहस का बाजार गर्म किया जाए, लिहाजा इसमें उलझने की बजाय ये हिदायत दी गई है कि अगर कोई इस मामले में बहस करना भी चाहे तो उसे सरसरी गुफ्तगू करके टाल दो और अपना वक्त ज़ाय ना करो। अगली 2 आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, और ए पैगम्बर, किसी भी काम के बारे में कभी ये ना कहो कि मैं ये काम कल कर लूंगा। हाँ, ये कहो कि अल्लाह चाहेगा तो कर लूंगा, और जब कभी भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लो और कहो मुझे उम्मीद है कि मेरा रब किसी ऐसी बात की तरफ रहनुमाई कर दे जो हिदायत में उससे भी ज्यादा करीब हो। इन आयात की तफसीर में फरमाया कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाबे कहफ और ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल किया गया था, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करने वालों से एक तरह का वादा कर लिया था कि मैं इस सवाल का जवाब कल दूंगा। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहना भूल गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये उम्मीद थी कि कल तक वही के जरिए आपको इन वाक़यात से बाखबर कर दिया जाएगा। इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला ने ये मुस्तकिल हिदायत अता फरमाई कि किसी भी मुसलमान को आइंदा के बारे में कोई बात इंशाअल्लाह कहे बगैर नहीं कहनी चाहिए। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि इस मामले में चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह नहीं फरमाया था, इसलिए अगले रोज़ वही नहीं आई, बल्कि कई रोज़ के बाद वही आई और उसमें यह हिदायत भी दी गई। दोस्तों, अगली 2 आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो असहाबे कहफ अपने गार में 300 साल और मजीद 9 साल सोते रहे। अगर कोई इसमें बहस करे तो कह दो कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कितनी मुद्दत सोते रहे। आसमानों और ज़मीन के सारे भेद उसी के इल्म में हैं। वो कितना देखने वाला और कितना सुनने वाला है, उसके सिवा उनका कोई रखवाला नहीं है और वो अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। दोस्तों, मुफस्सिरीन का कहना है कि अगरचे अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ के बारे में ये बतला दिया कि वो गार में 309 साल तक सोते रहे, लेकिन आगे फिर वही बात इरशाद फरमाई कि महज क़यास की बुनियाद पर इस बहस में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई इस मुद्दत से इख्तलाफ करे तो ये कहकर बहस का दरवाज़ा बंद कर दो कि अल्लाह ताला ही इस मुद्दत को खूब जानता है, उसने जो मुद्दत बता दी है वही दुरुस्त है। अगली आयत का तर्जुमा है, और ए पैगम्बर, तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही के जरिए जो किताब भेजी गई है उसे पढ़कर सुना दो। कोई नहीं है जो उसकी बातों को बदल सके और उसे छोड़कर तुम्हें हरगिज़ पनाह की जगह नहीं मिल सकती। इस आयत की तफसीर में फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये खिताब दर हकीकत उन काफिरों को सुनाने के लिए है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया करते थे कि आप इस कुरान में हमारी ख्वाहिश और अकीदे के मुताबिक तब्दीलियाँ कर लें तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के लिए तैयार हैं। उनका ये मुतालबा सूरह यूनुस में गुजर चुका है। यहाँ फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला के कलाम में तब्दीली करने का किसी को इख्तियार नहीं, और अगर कोई ऐसा करे तो उसे अल्लाह ताला के अजाब से बचने के लिए कोई पनाहगाह मुयस्सर नहीं आ सकती। अगली आयत में फरमाया, और अपने आप को इस्तकामत से उन लोगों के साथ रखो जो सुबह शाम अपने रब को इसलिए पुकारते हैं कि वो उसकी खुशनुदी के तलबगार हैं, और तुम्हारी आंखें दुनियावी जिंदगी की खूबसूरती की तलाश में ऐसे लोगों से हटने ना पाएं, और किसी ऐसे शख्स का कहना न मानो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल रखा है,
اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ بعض کفار کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ جو غریب اور کم حیثیت لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، اگر آپ انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہوں گے۔ موجودہ حالات میں ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی کوئی بات نہیں سن سکتے۔ یہ آیت اس مطالبے کو رد کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دے رہی ہے کہ آپ اس مطالبے کو نہ مانیں اور اپنے غریب صحابہ کی رفاقت نہ چھوڑیں، اور اس ضمن میں ان غریب صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے مقابلے میں ان مالدار کافروں کی برائی بیان کی گئی ہے۔ پیارے دوستو، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کیسا بدترین پانی اور کیسی بری آرام گاہ ہے۔ ان آیات کی تفسیر یہ ہے کہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد دنیا میں کسی کو ایمان لانے پر زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا، البتہ جو شخص ایمان نہیں لائے گا اس کو آخرت میں بے شک ایک خوفناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگلی آیات میں فرمایا، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے۔ کتنا بہترین اجر اور کیسی حسین آرام گاہ۔ اور اے پیغمبر، ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، گزشتہ آیات میں کافر سرداروں کے اس تکبر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک ایسا واقعہ بیان فرما رہے ہیں جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مال و دولت کی زیارتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر کوئی شخص اترائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط نہ ہو تو بڑے بڑے مالدار لوگ انجام کے طور پر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو تو غریب لوگ ان سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں۔ جن 2 آدمیوں کا یہاں ذکر فرمایا گیا ہے ان کی کوئی تفصیل کسی مستند مرفوع روایت میں موجود نہیں ہے، البتہ بعض مفسرین نے کچھ روایتوں کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہیں اپنے باپ سے وراثت میں بڑی دولت ہاتھ آئی تھی۔ ان میں سے ایک نے کافر ہو کر اسی دولت سے دل لگا لیا اور دوسرے نے اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، اور اسی کی وجہ سے اس کی دولت پہلے شخص کے مقابلے میں گنتی میں کم رہ گئی، لیکن آخرکار کافر شخص کی دولت پر آفت آ گئی اور اسے حسرت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ دوستو، اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی، اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھ بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے، اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوگا، کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا؟ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں؟ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے 2 چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائیں، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا، اور سے کوئی ایسا جتھ میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا اور بہتر انجام کو دکھاتا ہے۔ اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ دوستو، ان آیات میں 2 بھائیوں کا واقعہ بیان ہوا اور آخر میں انسان پر یہ بات واضح فرمائی کہ جس طرح یہ سبزہ ناپائیدار ہے کہ شروع میں اس کی خوب بہار نظر آتی ہے لیکن آخر کار وہ چورا چورا ہو کر ہوا میں بکھر جاتا ہے، اسی طرح دنیاوی زندگی بھی شروع میں بڑی خوبصورت اور بارونق معلوم ہوتی ہے لیکن انجام کار اس کا یہ ہے کہ وہ فنا ہو جانے والی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
माल और औलाद दुनियावी जिंदगी की जीनत हैं, और जो नेकियां पायदार रहने वाली हैं वो तुम्हारे रब के नज़दीक सवाब के एतबार से भी बेहतर हैं और उम्मीद वाबस्ता करने के लिए भी बेहतर। इस आयत की तफसीर में फरमाया कि दुनिया के मालो असबाब से उम्मीदें लगाकर बैठो तो एक वक्त वो धोखा दे जाते हैं, लेकिन नेक अमाल जो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए किए जाएं, उनसे सवाब की जो उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं। अगली आयत में फरमाया, और इस दिन का ध्यान रखो जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को देखोगे कि वो खुली पड़ी हैं, और हम उन सबको घेर कर इकट्ठा कर देंगे और उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम की आयत को सामने रखने से पता चलता है कि क़यामत के मौके पर पहाड़ों को पहले अपनी जगह से हटाकर चलाया जाएगा, फिर उनको पीस कर गुबार की तरह हवा में उड़ा दिया जाएगा। चलाने का जिक्र इस जगह के अलावा भी आया है और उन्हें पीस कर गुबार में तब्दील कर देने का जिक्र भी कई सूरतों में मौजूद है। इसका मतलब ये भी है कि जो चीज़ें ज़मीन के अंदर पोशीदा हैं वो सामने आ जाएंगी, जैसा कि सूरह अनशकाक में बयान फरमाया गया है। और ये मतलब भी है कि पहाड़ों, दरख्तों और अमारतों के फना हो जाने के बाद ज़मीन हद नज़र तक सपाट नजर आएगी, इसमें कोई नशेबो फराज नहीं होगा। दोस्तों, अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, और सबको तुम्हारे रब के सामने सफ बांध कर पेश किया जाएगा। आखिर तुम हमारे पास इसी तरह आ गए जिस तरह हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। इसके बरक्स तुम्हारा दावा ये था कि हम तुम्हारे लिए ये मुकर्रर वक्त कभी नहीं लाएंगे, और अमाल की किताब सामने रख दी जाएगी। चुनाचे तुम मुजरमों को देखोगे कि वो उसके मंदरजात से खौफजदा हैं और कह रहे हैं कि हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है जिसने हमारा कोई छोटा बड़ा अमल ऐसा नहीं छोड़ा जिसका पूरा अहाता ना कर लिया हो, और वो अपना सारा किया धरा अपने सामने मौजूद पाएंगे, और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगा। और वो वक्त याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम के आगे सजदा करो, चुनाचे सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो जिन्नात में से था, चुनाचे उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम मेरे बजाय उसे और उसकी ज़ुर्रियत को अपना रखवाला बनाते हो, हालांकि वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह ताला का कितना बुरा मुतबादिल है जो जालिमों को मिला है। और अगली आयत में फरमाया, मैंने न आसमानों और ज़मीन की तख्लीक के वक्त उनको हाजिर किया था, न खुद उनको पैदा करते वक्त, और मैं ऐसा नहीं हूं कि गुमराह करने वालों का दस्तो बाजू बनाऊं। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिन शयातीन को उन काफरों ने अपना सरपरस्त बना रखा है, उनको मैंने तख्लीक कायनात का मंजर दिखाने के लिए या उनसे मदद लेने के लिए नहीं बुलाया था कि वो तख्लीक के इसरार से वाकिफ होते, लेकिन काफरों ने यह समझ रखा है कि ये शयातीन तमाम हकायक को जानते हैं। चुनाचे उनके बहकावे में आकर अल्लाह ताला के साथ उनको या जिनको वो कहें खुदाई का शरीक करार देते हैं। दोस्तों, अगली आयत में इरशाद है, और उस दिन का ध्यान करो जब अल्लाह उन मुशरिकों से कहेगा कि जरा पुकारो उनको जिन्हें तुमने मेरी खुदाई में शरीक समझ रखा था। चुनाचे वो पुकारेंगे लेकिन वो उनको कोई जवाब नहीं देंगे, और हम उनके दरमियान एक मोहलिक आड़ हायल कर देंगे, और मुजरम लोग आग को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्हें इसी में गिरना है और उससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे। और हमने लोगों के फायदे के लिए इस तरह कुरान में तरह तरह से हर किस्म के मज़ामीन बयान किए हैं, और इंसान है कि झगड़ा करने में हर चीज़ से बढ़ गया है। और जब लोगों के पास हिदायत आ चुकी तो अब उन्हें ईमान लाने और अपने रब से माफ़ी मांगने से इस मुतालबे के सिवा कोई और चीज़ नहीं रोक रही कि उनके साथ भी पिछले लोगों जैसे वाक़यात पेश आ जाएं या अजाब उनके बिल्कुल सामने आ खड़ा हो। इन आयात की तफसीर में फरमाया कि उन लोगों पर सारी हुज्जतें तो तमाम हो चुकी, अब उनके पास अपने कुफर पर उसके सिवा कोई दलील बाकी नहीं रही कि ये पैगंबर से मुतालबा करते हैं कि जैसा अजाब पिछली उम्मतों पर आया था, अगर हम बातिल पर हैं तो वैसा ही अजाब हम पर लाकर दिखाओ। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि पैगंबरों का काम अपने इख्तियार से अजाब नाजिल करना नहीं होता, वो तो लोगों को अजाब से मुतनब्बे करते हैं। और अल्लाह ताला का मामला ये है कि वो नाफरमानों पर फौरन अजाब नहीं भेजता, बल्कि अपनी रहमत की वजह से उन्हें मोहलत देता है, ताकि इस मोहलत के दौरान जिनको ईमान लाना हो वो ईमान ले आएं। अलबत्ता उसकी तरफ से नाफरमानियों को अजाब देने के लिए एक वक्त मुकर्रर है, जब वो वक्त आएगा तो कोई इस अजाब को टला नहीं सकेगा। अगली आयत में फरमाने इलाही है, और हम पैगंबरों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो मोमिनों को खुशखबरी दें और काफरों को अजाब से मुतनब्बे करें। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो बातिल का सहारा लेकर झगड़ा करते हैं ताकि उसके जरिए हक को डगमगा दें, और उन्होंने मेरी आयतों को और उन्हें जो तंबीह की गई थी उसको मजाक बना रखा है। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के हवाले से नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह मोड़ ले और अपने हाथों के करतूत को भुला बैठे। हकीकत यह है कि हमने उन लोगों के करतूत की वजह से उनके दिलों पर गुलाफ चढ़ा दिए हैं, जिनकी वजह से वो कुरान को नहीं समझते, और उनके कानों में डांट लगा दी है। और अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ तब भी वो सही रास्ते पर हरगिज नहीं आएंगे। और तुम्हारा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला बड़ा रहमत वाला है। जो कमाई उन्होंने की है अगर वो उसकी वजह से उन्हें पकड़ने पर आता तो उनको जल्द ही अजाब दे देता, लेकिन उनके लिए एक वक्त मुकर्रर है जिससे बचने के लिए उन्हें पनाहगाह नहीं मिलेगी। ये सारी बस्तियां तुम्हारे सामने हैं। जब उन्होंने जुल्म की रविश अपनाई तो हमने उनको हलाक कर डाला, और उनकी हलाकत के लिए भी हमने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ था। और उस वक्त का जिक्र सुनो जब मूसा ने अपने नौजवान शागिर्द से कहा था
कि मैं उस वक्त तक अपना सफर जारी रखूंगा जब तक 2 समंदरों के संगम पर न पहुंच जाऊं, वरना बरसों चलता रहूंगा। प्यारे दोस्तों, इन आयत से आगे तकरीबन 50 आयतों में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान फरमाया है जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े की तफसील एक तवील हदीस में बयान फरमाई है जो सही बुखारी में कई सनदों से मनकूल है। इस हदीस का खुलासा यह है कि एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने यह सवाल किया कि इस वक्त रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है, क्योंकि हर पैगंबर अपने वक्त में दीन का सबसे बड़ा आलिम होता है। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में यही फरमा दिया कि मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूँ। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह हिदायत दी गई कि इस सवाल का सही जवाब यह था कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि सबसे बड़ा आलिम कौन है। नीज़ अल्लाह ताला ने चाहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म के कुछ ऐसे गोशों से रोशनास कराएं जो उनकी वाकफियत के दायरे से बाहर थे। चुनाचे उन्हें हुक्म दिया कि वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जाएं। उनको पता ये बताया गया कि जहां 2 दरिया मिलते हैं वहां तक सफर करें और अपने साथ एक मछली ले जाएं। एक मौका ऐसा आएगा कि वो मछली गुम हो जाएगी, बस उसी जगह उन्हें हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मिल जाएंगे। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने नौजवान शागिर्द हजरत यूशा को साथ लेकर उस सफर पर रवाना हुए जो बाद में खुद पैगंबर बनने वाले थे। आगे का वाक़या सूरह काफ के तर्जुमे में आ रहा है। अलबत्ता यहाँ इतना समझ लेना चाहिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो ये सफर कराया गया उसका एक मकसद तो ये आदाब सिखाना था कि अपने आप को सबसे बड़े आलिम कहना किसी को भी जेब नहीं देता। इल्म तो एक नापैद समंदर है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सा इल्म किसके पास ज्यादा है। और दूसरा मकसद ये था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आंखों से इस बात की एक झलक देख लें कि अल्लाह ताला अपनी हिकमत और इल्म से इस कायनात का निज़ाम किस तरह चला रहा है। दोस्तों, इस कायनात में बहुत से ऐसे वाक़यात रोज़मर्रा इंसान के सामने आते रहते हैं जिनका मकसद उसकी समझ में नहीं आता। हालांकि कोई वाक़या तो अल्लाह ताला की किसी न किसी हिकमत के बगैर नहीं होता। इंसान की ये नज़र चूंकि महदूद है इसलिए वो इस हिकमत को बसा औकात नहीं समझता, लेकिन जिस कादिर मुतलक के हाथ में पूरी कायनात की बागडोर है वही जानता है कि किस वक्त क्या वाक़या पेश आना चाहिए। दोस्तों, सूरह काफ की आयत नंबर 61 का तर्जुमा है, चुनाचे जब वो उनके संगम पर पहुंचे तो दोनों अपनी मछली को भूल गए और उसने समंदर में एक सुरंग की तरह का रास्ता बना लिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक चट्टान पर पहुंचकर कुछ देर के लिए सो गए। इस दौरान वो मछली जो एक जंबील में थी वहां से खिसक कर दरिया में जा गिरी और जिस जगह गिरी वहां पानी में सुरंग सी बन गई जिसमें जाकर मछली गायब हो गई। हजरत यूशा उस वक्त जाग रहे थे और उन्होंने ये अजीब वाक़या देखा, मगर चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोए हुए थे इसलिए उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा। बाद में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जागकर आगे रवाना हुए तो हजरत यूशा उनको ये बात बताना भूल गए और याद उस वक्त आया जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे चलकर नाश्ता मांगा। अगली आयत का तर्जुमा मुलाहिजा फरमाएं। फिर जब दोनों आगे निकल गए तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि हमारा नाश्ता लाओ। सच्ची बात यह है कि हमें उस सफर में बड़ी थकावट लाहक हो गई है। उसने कहा, भला बताइए, अजीब किस्सा हो गया। जब हम उस चट्टान पर ठहरे थे तो मैं मछली का आपसे जिक्र करना भूल गया और शैतान के सिवा कोई नहीं है जिसने मुझसे इसका तज़किरा करना भुलाया हो, और उस मछली ने तो बड़े अजीब तरीके पर दरिया में अपनी राह ली थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसी बात की तो हमें तलाश थी। चुनाचे दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस लौटे। दोस्तों, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यही अलामत बतलाई गई थी कि जिस जगह पर मछली गुम होगी वहीं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। इसलिए हजरत यूशा ने तो डरते डरते ये वाक़या जिक्र किया था, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसे सुनकर खुश हुए कि मंजिल मकसूद का पता लग गया। प्यारे दोस्तों, अगली आयत में इरशाद है, तब उन्होंने अपने बंदों में से एक बंदा मिलाया जिसको हमने अपनी खुसूसी रहमत से नवाजा था और खास अपनी तरफ से एक इल्म सिखाया था। दोस्तों, बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस चट्टान के पास वापस पहुंचे तो वहां पर चादर ओढ़े हुए लेटे नजर आए और उनके जिस खुसूसी इल्म के सिखाने का जिक्र फरमाया गया उससे मुराद तकवीनियात का इल्म है। अगली आयत में इरशाद फरमाया, मूसा ने उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ इस गरज से रह सकता हूँ कि आपको भलाई का जो इल्म अता हुआ है उसका कुछ हिस्सा मुझे भी सिखा दे। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे और जिन बातों की आपको पूरी तरह वाकफियत नहीं है उन पर आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं। दोस्तों, सही बुखारी की हदीस में है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यह भी कहा था कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा इल्म दिया है जो आपके पास नहीं, यानी तकवीनियात, और आपको ऐसा इल्म दिया है जो मेरे पास नहीं, यानी शरीयत का इल्म। अगली आयत में इरशाद है, मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो जब तक मैं खुद ही आपसे किसी बात का तज़किरा शुरू ना करूं आप मुझसे किसी भी चीज़ के बारे में सवाल ना करें। चुनाचे दोनों रवाना हो गए, यहाँ तक कि जब दोनों एक कश्ती में सवार हुए तो उन साहब ने कश्ती में छेद कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अरे क्या आपने इसमें छेद कर दिया ताकि सारी कश्ती वालों को डुबो डाले? ये तो आपने बड़ा खौफनाक काम किया। दोस्तों, रिवायात सही बुखारी की है कि उन्होंने कश्ती का एक तख्ता निकालकर उसमें सुराख कर दिया था। अगली आयत में इरशाद है, उन्होंने यानी खिज़र ने कहा, क्या मैंने कहा नहीं था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझसे जो भूल हो गई इस पर मेरी गिरफ्त ना कीजिए और मेरे काम को ज़्यादा मुश्किल ना बनाइए। वो दोनों फिर रवाना हो गए, यहाँ तक कि उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई तो उन साहब ने उसे कत्ल कर डाला। मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, अरे क्या आपने एक पाकीज़ा जान को हलाक कर दिया जब उसने किसी की जान नहीं ली थी जिसका बदला उससे लिया जाए? ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया। दोस्तों, मज़कूरा हदीस में है कि वो लड़का दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था
हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अगली आयत का तर्जुमा है, उन्होंने यानी खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अगर अब मैं आपसे कोई बात पूछूं तो आप मुझे अपने साथ ना रखिए, यकीनन आप मेरी तरफ से उज़र की हद को पहुंच गए हैं। चुनाचे वो दोनों फिर रवाना हो गए, यहाँ तक कि जब एक बस्ती वालों के पास पहुंचे तो उसके बाशिंदों से खाना मांगा तो उन लोगों ने उनकी मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया। फिर उन्हें वहां एक दीवार मिली जो गिरने के करीब थी। उन साहब ने उसे खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो इस काम पर कुछ उजरत ले लेते। दोस्तों, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मतलब ये है कि बस्ती वालों ने मेहमानी से तो इनकार कर दिया था, लेकिन उस दीवार की मुरम्मत पर उनसे जायज़ उजरत वसूल की जा सकती थी, जिससे हमारे खाने का भी इंतजाम हो सकता था। अगली आयत में इरशाद बारी ताला है, उन्होंने यानी खिज़र ने कहा, लीजिए मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया। अब मैं आपको इन बातों का मकसद बता देता हूँ जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका। जहाँ तक कश्ती का ताल्लुक है, वो कुछ गरीब आदमियों की थी जो दरिया में मजदूरी करते थे। मैंने चाहा कि इसमें कोई ऐब पैदा कर दूं, क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को ज़बरदस्ती छीन कर रख लिया करता था। और लड़के का मामला ये था कि उसके माँ बाप मोमिन थे और हमें उस बात का अंदेशा था कि ये लड़का उन दोनों को सरकशी और कुफर में ना फंसा दे। चुनाचे हमने ये चाहा कि उनका परवरदिगार उन्हें इस लड़के के बदले ऐसी औलाद दे जो पाकीज़गी में भी इससे बेहतर हो और हुस्न सलूक में भी इससे बड़ी हुई। रही ये दीवार तो वह शहर में रहने वाले 2 यतीम लड़कों की थी और इसके नीचे उनका एक खजाना गड़ा हुआ था और उन दोनों का बाप एक नेक आदमी था। इसलिए आपके परवरदिगार ने यह चाहा कि ये दोनों लड़के अपनी जवानी की उम्र को पहुंचें और अपना खजाना निकाल लें। ये सब कुछ आपके रब की रहमत की बिना पर हुआ है और मैंने कोई काम अपनी राय से नहीं किया। यह था मकसद इन बातों का जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका। प्यारे दोस्तों, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलवाने और ये वाक़यात दिखाने का असल मकसद एक अहम हकीकत का मुशाहिदा कराना था और इसी हकीकत को वाज़े करने के लिए कुरान करीम ने यह वाक़या हमारे लिए बयान फरमाया। इस्लामी शरीयत की रूह से किसी के लिए यह बिल्कुल जायज़ नहीं है कि वो किसी दूसरे की मलकियत में उसकी इजाज़त के बगैर कोई तसर्रुफ़ करे। ख़ास तौर पर उसकी तो हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती कि उसकी मलकियत को कोई नुकसान पहुँचा दे, चाहे वो नुकसान खुद मालिक के फ़ायदे की नीयत ही से पहुँचाया गया हो। लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती वालों की इजाज़त के बगैर उसका तख्ता निकाल दिया। इसी तरह किसी बेगुनाह को कत्ल करना शरीयत में इंतहाई संगीन जुर्म है। ख़ासतौर पर किसी नाबालिग लड़के को कत्ल करना तो हालत जंग में भी जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि अगर ये मालूम हो कि ये लड़का बड़ा होकर कोई फसाद मचाएगा, तब भी उस वक्त उसे कत्ल करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन पर खामोश नहीं रह सके। मेरे दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ ये काम कैसे किए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस कायनात में जितने वाक़यात होते हैं, चाहे वो हमारी नज़र में अच्छे मालूम होते हों या बुरे, उनका ताल्लुक एक ऐसे जहां से है जो हमारी आंखों से पोशीदा है और जिसे इस्तिलाह में आलम तकवीन कहा जाता है, जो बराह रास्त अल्लाह ताला की हिकमत और उसके तकवीनी अहकाम के जरिए कंट्रोल हो रहा है। किसी शख्स को कितने अरसे जिंदा रहना है और कब उसकी मौत वाक़ होगी, वो कितने अरसे सेहतमंद रहेगा और कब बीमार हो जाएगा, उसे कब कौन सा रोज़गार नसीब होगा और उसके ज़रिए वो कितनी रोज़ी कमा सकेगा, इस किस्म के सारे मामलात अल्लाह ताला बराह रास्त तय फरमाते हैं और इन फैसलों को नाफिज करने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ कारिंदे मुकर्रर फरमा रखे हैं जो हमारी निगाहों से पोशीदा रहकर अल्लाह ताला के इन तकवीनी अहकाम की तामील करते हैं। मसलन जब अल्लाह ताला ने यह तय फरमा लिया कि फ़लाँ शख्स की मौत का वक्त आ गया है, तो अल्लाह ताला की तरफ से मौत का फरिश्ता उस शख्स की रूह कब्ज़ करने के लिए पहुंच जाता है। जब वो अल्लाह ताला की तकवीनी हुक्म की तामील में किसी की मौत वाक़ कर रहा होता है तो वो किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करता है। किसी इंसान को यह हक नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरे की जान ले, लेकिन जिस फरिश्ते को अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर फरमाया है उसके लिए ये कोई जुर्म नहीं। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला के तकवीनी अहकाम को नाफिज करने के लिए आम तौर से फरिश्ते मुकर्रर होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहे ये फरीज़ा सौंप सकते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अगरचे इंसान थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको फरिश्तों की तरह आलिम तकवीन का पैगंबर बना दिया था। उन्होंने जो कुछ किया अल्लाह ताला के तकवीनी हुक्म के जरिए किया। लिहाजा जिस तरह मौत के फरिश्ते पर यह एतराज़ नहीं किया जा सकता कि उसने एक बेगुनाह की जान लेकर गुनाह का इर्तिकाब किया है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से इसी बात के लिए मामूर था। इसी तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी इस कश्ती को ऐब लगाने और उस लड़के को कत्ल करने पर अल्लाह ताला की तरफ से तकवीनी तौर पर मामूर थे, इसलिए उनका ये अमल कोई जुर्म नहीं था। अलबत्ता हम लोग दुनिया में रहते हुए शरीयत के अहकाम के पाबंद हैं और हमें आलम तकवीन का ना इल्म अता किया गया है और ना इस आलम से मुताल्लिक हमें कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसलिए हम इन्हीं अहकाम के मुकल्लफ हैं जो इस जीती जागती ज़िंदगी में हमें आंखों से नजर आते हैं। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो इस जीती जागती दुनिया के पैगंबर थे और जो शरीयत उनको दी गई थी उसी के पाबंद थे, इसलिए वो ना हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की इन बातों पर खामोश रह सके और ना आइंदा उनके साथ चल सके। इन 3 वाक़यात के बाद वो समझ गए कि उन साहब का दायरा कार मेरे दायरे कार से बिल्कुल अलग है और मैं उनके साथ नहीं चल सकता। अलबत्ता इस तरह उन्हें यह हकीकत खुली आंखों दिखा दी गई कि इस कायनात में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अल्लाह ताला की लामहदूद हिकमत कार फरमा है। अगर हमें किसी वाक़े की वजह से समझ में ना आए तो उसकी बिना पर अल्लाह ताला के फैसले पर किसी एतराज़ की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिस आलम तकवीन में उसकी हिकमत वाज़े हो सकती है वो हमारी निगाहों से पोशीदा है।
दोस्तों रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत से मंजर ऐसे नज़र आते हैं जिन पर हमारा दिल दुखता है। बहुत से इंसानों की मजलूमियत को देखकर बाज़ औक़ात दिल में शकूक व शुबहात पैदा होने लगते हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए आलिम तकवीन की एक झलक दिखाकर एक मोमिन के लिए ऐसे शकूक व शुबहात का खात्मा कर दिया गया है। अलबत्ता ये याद रखना चाहिए कि ये आलिम तकवीन और उनके कारिंदे हमारी आंखों से पोशीदा हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम भी इसी तरह पोशीदा थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आलिम तकवीन की एक झलक दिखाने के लिए वही के ज़रिए उनका पता बताया गया। अब जबकि वही का दरवाज़ा बंद हो चुका है, किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो यकीनी तौर पर तकवीन के किसी कारिंदे तक रसाई हासिल कर सके। प्यारे दोस्तों, सूरह कहफ की आयत नंबर 83 में इरशाद बारी ताला है, और ये लोग तुमसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दो कि मैं उनका कुछ हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। दोस्तों वीडियो के आगाज़ में हम आपको बता चुके हैं कि मुशरिकीन ने हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात किए थे। इनमें से एक सवाल ये था कि उस शख्स का हाल बताएं जिसने मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया का सफ़र किया था। यहाँ से इस सवाल का जवाब दिया जा रहा है। कुरान करीम ने बताया है कि उस शख्स का नाम ज़ुल्करनैन था। ज़ुल्करनैन के लफ्ज़ी मानी है 2 सींगों वाला। ये किसी नामालूम वजह से एक बादशाह का लक़ब था। कुरान करीम ने उस बादशाह की तफसीलात नहीं बताई कि वो कौन था और किस ज़माने से था। अलबत्ता हमारे ज़माने के बेशतर मुहक्किकीन का रुझान ये है कि वो ईरान का बादशाह साइरस था, जिसने बनी इसराइल को बाबिल की जिलावतनी से निजात दिलाकर उन्हें दोबारा फ़लस्तीन में आबाद किया था। कुरान मजीद ने इतना बताया है कि उन्होंने 3 लंबे सफ़र किए थे। पहला दुनिया की इंतहाई मगरबी आबादी तक, दूसरा इंतहाई मशरकी आबादी तक और तीसरा इंतहाई शुमाली इलाके तक, जहाँ उन्होंने याजूज माजूज की वहशाना हमलों से लोगों को बचाने के लिए एक दीवार तामीर की थी। दोस्तों अगली आयत में इरशाद बारी ताला है, वाक़या ये है कि हमने उनको ज़मीन में इक़्तिदार बख्शा था और उन्हें हर काम के वसाइल अता किए थे, जिसके नतीजे में वो एक रास्ते के पीछे चल पड़े। यहाँ तक कि जब वो सूरज के डूबने की जगह पहुंचे तो उन्हें दिखाई दिया कि वो एक दलदल जैसे स्याह चश्मे में डूब रहा है, और वहाँ उन्हें एक कौम मिली। हमने उनसे कहा, ऐ ज़ुल्करनैन, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो इन लोगों को सज़ा दो या फिर उनके मामले में अच्छा रवैया इख्तियार करो। दोस्तों मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये उनके पहले सफ़र का जिक्र है, और मतलब ये है कि इस वक्त मगरब में दुनिया के जो आखिरी आबादी थी, ज़ुल्करनैन वहाँ तक पहुँचे। वो ऐसी जगह थी कि उसके बाद कोई आबादी नहीं थी और हद नज़र तक समंदर फैला हुआ था, और समंदर की शक्ल भी एक स्याह रंग की दलदल जैसी थी। और शाम के वक्त जब सूरज गुरूब होता तो देखने वाले को ऐसा लगता था जैसे वो एक दलदल नुमा चश्मे में डूब रहा हो। उस इलाके में काफिर लोग आबाद थे और हज़रत ज़ुल्करनैन ने उसे फतह कर लिया था। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि अगर तुम चाहो तो दूसरे फातिहों की तरह तुम भी उन्हें लोगों को कत्ले आम करके तकलीफ में मुब्तला कर सकते हो, और अगर चाहो तो उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार कर सकते हो। दूसरी सूरत को अच्छा रवैया करार देकर अल्लाह ताला ने इशारा फरमा दिया कि ये सूरत बेहतर है। प्यारे दोस्तों याद रहे कि ज़ुल्करनैन के बारे में ये बात यकीनी नहीं है कि वो पैगंबर थे या नहीं। अगर वो पैगंबर थे तो अल्लाह ताला ने ये बात उनसे बराह रास्त वही के ज़रिए फरमाई होगी, और वो पैगंबर नहीं थे तो उनको उस ज़माने के किसी पैगंबर के ज़रिए ये बात पहुँचाई होगी, और ये भी मुमकिन है कि वही के बजाय इल्हाम के ज़रिए उनके दिल में ये बात डाली होगी। अल्लाह ही इसका बेहतर इल्म रखता है। अगली आयत में इरशाद है, उन्होंने यानी ज़ुल्करनैन ने कहा, इनमें से जो कोई जुल्म का रास्ता इख्तियार करेगा उसे तो हम सज़ा देंगे, फिर उसे अपने रब के पास पहुँचा दिया जाएगा और वो उसे सख्त अज़ाब देगा। अलबत्ता जो कोई ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो वो बदले के तौर पर अच्छे अंजाम का मुस्तहिक होगा, और हम भी उसको अपना हुक्म देते वक्त आसानी की बात कहेंगे। दोस्तों मुफस्सिरीन के मुताबिक ज़ुल्करनैन के जवाब का हासिल ये है कि मैं उन्हें राह रास्त पर आने की दावत दूंगा। जो लोग इस दावत को कबूल ना करके जुल्म का इर्तिकाब करेंगे उन्हें तो मैं सजा दूंगा, और जो लोग दावत कबूल करके ईमान अमल साले इख्तियार कर लेंगे उनके साथ मैं आसानी का मामला करूंगा। अगली आयत में इरशाद है, इसके बाद वो एक और रास्ते के पीछे चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो सूरज के तुलू होने की जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसे हमने उसकी धूप से बचने के लिए कोई ओट मुहैया नहीं की थी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये ज़ुल्करनैन के दूसरे सफ़र का जिक्र है। उस सफ़र में वो दुनिया की इंतहाई मशरकी आबादी तक जा पहुंचे थे। यहाँ कुछ गैर मुतमद्दन लोग रहते थे। उनमें मकान बनाने और छतें डालने का दस्तूर नहीं था। सब खुले मैदान में रहते थे, इसलिए धूप से बचाव के लिए कोई ओट नहीं थी, बल्कि सूरज की किरणें उन पर बराह रास्त पड़ती थीं। अगली आयत में जिक्र फरमाया कि वाकई इसी तरह हुआ, और ज़ुल्करनैन के पास जो कुछ साजो सामान था हमें उसकी पूरी खबर थी। इसके बाद वो एक और रास्ते के पीछे चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो उन्हें उन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। मुफस्सिरीन के नज़दीक ये ज़ुल्करनैन का तीसरा सफ़र है। कुरान मजीद ने इस सफ़र की सिमत मुतय्यन नहीं फरमाई, लेकिन बेशतर मुफस्सिरीन का ख्याल ये है कि यह सफ़र शुमाल में दुनिया की इंतहाई आबादी की तरफ हुआ। यहाँ के लोगों की ज़ुबान बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और शायद हुलिया भी ऐसा हो कि उनमें समझ के आसार ना आते हों, और आगे उनसे जो गुफ्तगू हुई वो या तो किसी तर्जुमान के जरिए हुई होगी या इशारों से। दोस्तों अगली आयत में इरशाद बारी ताला है, उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज इस ज़मीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान कोई दीवार बना दें। दोस्तों इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि याजूज माजूज 2 वहशी कबीले थे जो उन पहाड़ों के पीछे रहते थे, और थोड़े थोड़े वक्फों से वो पहाड़ों के दरमियान दर्रे से उस इलाके में आकर कत्ल व गारत गरी का बाजार गर्म कर देते थे।
علاقے کے لوگ ان سے پریشان تھے، اس لیے انہوں نے ذوالقرنین کو دیکھا کہ وہ بڑے وسائل کے مالک ہیں، تو ان سے درخواست کی کہ پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے اسے ایک دیوار بنا کر بند کر دیں تاکہ یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہو جائے اور وہ یہاں آ کر فساد نہ پھیلا سکیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے کچھ مال کی بھی پیشکش کی، لیکن حضرت ذوالقرنین نے کوئی معاوضہ لینے سے انکار کر دیا، البتہ یہ کہا کہ تم اپنی افرادی طاقت سے میری مدد کرو تو میں یہ دیوار بلا معاوضہ بنا دوں گا۔ اگلی آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر اونڈے لوں گا۔ ان آیات کی تفسیر میں آتا ہے کہ ذوالقرنین نے پہلے لوہے کی بڑی بڑی چادریں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر درے کو پاٹ دیا، پھر ان چادروں کو آگ سے گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا تاکہ وہ چادروں کی درمیانی دروازوں میں جا کر بیٹھ جائے، اور اس طرح یہ دیوار نہایت مضبوط بن گئی۔ اگلی آیات میں فرمان الہی ہے، چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی، پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ دوستو، ان آیات کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد دو حقیقتوں کو واضح کیا، ایک یہ کہ یہ کارنامہ میری قوت کا بازو کرشمہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے اس کی توفیق ہوئی ہے، اور دوسرے یہ کہ اگرچہ اس وقت یہ دیوار بہت مستحکم بن گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اسے توڑنا کچھ مشکل نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا یہ قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آ جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹوٹنا مقرر کر رکھا ہے تو یہ ٹوٹ کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح قرآن کریم سے یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتی کہ یہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی، بلکہ اس کا قیامت سے پہلے ٹوٹنا بھی ممکن ہے۔ چنانچہ بعض محققین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ دیوار روس کے علاقے داغستان میں دربند کے مقام پر بنائی گئی تھی اور اب وہ ٹوٹ چکی ہے۔ یاجوج ماجوج کے مختلف ریلے تاریخ کے مختلف زمانوں میں متمدن آبادیوں پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں، اور پھر وہ ان متمدن علاقوں میں پہنچ کر خود بھی متمدن ہوتے رہتے ہیں، البتہ ان کا آخری ریلا قیامت کے کچھ پہلے نکلے گا۔ اور آگے ذوالقرنین نے جو یہ فرمایا کہ میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے، اس سے مراد قیامت کا وعدہ ہے، مطلب یہ کہ یہ تو ابھی معلوم نہیں ہے کہ اس دیوار کے ٹوٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا وقت مقرر فرمایا ہے، لیکن ایک وعدہ واضح طور پر معلوم ہے کہ ایک وقت قیامت آنے والی ہے، اور جب وہ آئے گی تو ہر مضبوط سے مضبوط چیز بھی ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ ذوالقرنین نے اس پر قیامت کا جو حوالہ دیا اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے آگے قیامت کے کچھ حالات بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یاجوج ماجوج کا وہ ریلا بھی ہو سکتا ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا، اور مطلب یہ ہے کہ جب وہ قیامت کے قریب نکلیں گے تو ایک غیر منظم بھیڑ کی شکل میں نکلیں گے اور موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قیامت کے وقت عام لوگوں کی بدحواسی کا بیان ہو کہ قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ کر لوگ بدحواسی میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ اگلی آیات میں ارشاد ہے، اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھیں لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، کیا وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں؟ یقین رکھو کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہربانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں گے کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، مفسرین بتاتے ہیں کہ اس آیت کریمہ نے یہ بڑی حقیقت واضح فرمائی ہے کہ کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے صرف خلوص نیت کافی نہیں ہے بلکہ راستے کا سیدھا ہونا بھی ضروری ہے۔ بہت سے کافر خلوص کے ساتھ ایک کام کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کام انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یا اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی طرف اس کام کی کوئی سند نہیں ہوتی، اس لیے وہ ساری محنت بیکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے سمندر خشک ہو چکا ہوگا، چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں۔ پیارے دوستو، یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کو قلم بند کیا جائے تو بڑے بڑے سمندروں کو روشنائی بنا کر لکھا جائے تو سمندر کے سمندر خشک ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ اور دوستو، آخری آیات میں فرمایا، کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک ہے،
لہٰذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔